election fever has started to catch up with less than a week remaining for the first phase of voting for the 2019 Lok Sabha election. The political parties have started worldwide campaigning across the country. The candidates are going door to door and urging people to vote for them. The party cadres are hitting the streets, conducting rallies and campaign meetings, etc. But amidst the politically heated campaigning, where do the common masses stand? What are their issues and what do they want their politicians to talk about? And most importantly, what is the mood of the nation? We bring you all of this through our special series for the election 2019. Every day we will give you glimpses from each state, bringing you ground reactions and trying to assess the mood of the people. Today we will talk about Madhya Pradesh. The heart of the India, Madhya Pradesh, which is at the center of the nation, has produced political legends like former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Madhya Pradesh for nearly a decade was under rule of BJP with Shivraj Singh Chauhan as Chief Minister. Fondly known as Mama, Shivraj Singh Chauhan had become a household name in Madhya Pradesh. However, the scenario changed in 2018 December. During the assembly election last year, the Congress put all its might in Madhya Pradesh and wrested the state from BJP with a narrow margin. Though there were two CM aspirants, Congress President Rahul Gandhi picked old guard Kamal Nath over his close aide and royal Jyotiraditya Scindia. The victory in Hindi heartland state infused confidence into the erstwhile struggling Congress. This was about assembly election. Now let us have a look at the statistics that are significant for upcoming Lok Sabha election. The state of Madhya Pradesh in total has 29 constituencies. In 2014, BJP won 27 seats with a vote share of 55%, while Congress won 2 seats with a vote share of 34.90%. BSP did not win any seat but bagged vote share of 3.8%. Now out of total electorate, 2,67,78,268 are males, while 2,46,22,329 are females. 1,423 identify themselves as third gender. Now if we look at the composition of the population based on religion, then Hindus form 90.89%, that is the maximum majority. Muslims form 6.57%, Jains 0.78%, Buddhists are 0.30%, Christians are 0.29% and Sikhs are 0.21%. The major political parties in Madhya Pradesh are Congress and BJP. Other national parties like SP, BSP do have a presence, but they are not a major force in the state. Unlike other adjoining states, Madhya Pradesh has a minimal presence of regional parties. For 2019 Lok Sabha elections, Congress and BJP are contesting on 29 seats, while SP, BSP has a seat sharing of 26 and 3. Now let us have a look at the major candidates from the state. First up is Digvijay Singh, who is contesting from Bhopal on Congress ticket. Then Mandsaur Sudhir Gupta, who is a candidate of BJP. Rakesh Singh is a BJP candidate again from Jabalpur. Nakul Nath, who is the son of Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath, he is contesting from Chhindwara on Congress ticket. Ajay Singh contesting from Siddhi on Congress ticket. Narendra Singh Tomar is contesting from Morena on BJP ticket. Arun Yadav is contesting from Khandwa on Congress ticket. Now the rural distress was a major issue that turned around the results of 2018 assembly elections in Madhya Pradesh. Congress rose to power with a promise of farm loan waiver within 10 days. Whether it has actually been implemented on the ground or not will affect the upcoming Lok Sabha elections. Now let us see what is the mood of the people of Madhya Pradesh. वोट के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और बीजेपी ही ऑप्शन है, तो बीजेपी को ही वोट जाएगा। अब क्यों जाएगा बीजेपी को? मैंने जैसे कहा कि ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये कि विकास भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, कुछ कमियां रही हैं, पर एक मौका तो और देना चाहिए। आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र में तो समस्याएं हैं, लेकिन उनमें कंटिन्यू काम हो रहा है। साफ सफाई भी बराबर हो रही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है, वो तो चलता रहता है। रोड नालियाँ ये सब भी डेवलपमेंट में है, तो प्रोसेस तो ठीक है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, पर वोट तो देना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए। कांग्रेस को ही करेंगे सपोर्ट। क्या कारण है कांग्रेस को वोट करने का? कांग्रेस को वोट करने का ये कारण है कि हम लोगों को जो भी मिला है इतने सालों में 70 वर्षों के, तो कांग्रेस ने ही दिया है, ना कि 5 वर्षों में जो भी कार्यकाल हुए हैं कुछ भी नहीं हुए। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? क्या लगता है आपके लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं? हमारे यहाँ तो बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे गंदगी से रिलेटिव हो या बीमारियाँ हों, और अभी चिकनगुनिया वगैरह फैला हुआ था उसके लिए था, और सफाई व्यवस्था नहीं है,
और सबसे बड़ी बात है कि राकेश सिंह जी जो सांसद बने हुए 15 साल से, उन्होंने सिवाय हवाई जहाज और रेलगाड़ी के कुछ नहीं किया है। बस रेल, और कोई भी अन्य व्यक्ति समस्या लेके जाता है तो वो साफ ये बोलते हैं कि मेरा ये विषय ही नहीं है। सर, अब जो जैसा अभी काम चल रहा है, जहाँ पे मैं जिस वार्ड पे रहता हूँ वहाँ पे लाइट की सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, पानी की समस्याएं हैं। अगर मोदी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, बट मगर जो हमारे वार्ड के मैम जो हैं पार्षद, उन्होंने कुछ हमारे लिए काम नहीं किया है। अभी आप किसको वोट करेंगे? अभी तो जैसे मोदी जी हैं अभी काम कर रहे, तो हम तो उन्हीं को ही करेंगे वोट। तो क्या क्या कारण है उनको वोट करने का? कुछ खास बातें बताइए ना। जैसे अभी उन्होंने ये पुलवामा वाला जो हमला हुआ, उसमें जो उन्होंने कई अच्छे काम किए, सर्जिकल स्ट्राइकों का, उससे भी होना मुद्दा है। वोट करेंगे आप? मोदी जी को वोट करेंगे सर। क्या कारण है मोदी जी को वोट करने का? मोदी जी का ये है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, युवाओं के लिए भी, सियानों के लिए भी, जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाए ना, दवाई दारू के लिए, गरीबों के लिए मकान दिए, लेटरिन बाथरूम बनवाए लोगों ने हैं, और राशन भी अच्छा मिल रहा है। अभी पहले बहुत गंदा राशन मिलता रहा, अभी राशन बहुत अच्छा मिल रहा है। आपके इलाके की समस्या क्या है अभी? हमारे यहाँ इलाके की समस्या ये कि अभी सफाई जो कर्मचारी आते थे वो भी बंद हो गए, और बहुत दिन सफाई भी नहीं हो रही है। और क्या समस्या है? और समस्या तो ये है कि आने वाले समय में और सुविधाएं मिलती रहे तो वोटिंग भी अच्छी होगी। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, जी, उससे कोई शिकायत है आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो भारत की छवि बनाई है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मत में जो भी भारत के मुद्दे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही तरीके से और सही ढंग से रखा है। अंतर्राष्ट्रीय साख बनी है भारत की, जो आज के समय में उसके पहले कभी नहीं थी। अच्छा, आप जिस इलाके में हैं, जबलपुर संसदीय क्षेत्र है, इसकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो अभी? प्रमुख समस्या तो यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई रहती है, जो कि बहुत दिक्कत जाती है लोगों को, और साफ सफाई की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं रहती जैसा दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में रहती है। सांसद से क्या अपेक्षा है? सांसद को क्या करना चाहिए था? हालांकि सांसद ने कुछ विशेष तो नहीं किया, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा रहता है, राष्ट्रीय लेवल की सरकार अपन चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बीजेपी को वोट करूंगा। ये कांग्रेस को वोट करेंगे, माननीय तनखा जी को वोट करेंगे। क्या कारण है कि आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? सर, इतने साल से बीजेपी की सरकार थी या बीजेपी नगर निगम में बैठी है, लेकिन यहाँ समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है। इतना फ्रस्ट्रेट, इतना परेशान हो चुके हैं, काम के लिए जाओ तो है नहीं, जो मकान छोटे छोटे घर में जो रहते हैं उनके पास कुछ है नहीं रहने के लिए, कहीं भी उठा के कहीं भी फेंक दिया, लोग बिल्कुल रोड पे बैठे हुए हैं। तो तनखा जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, उसके बाद हम तो उन्हीं को वोट करेंगे ना। हम क्या वोट करेंगे, हम अपने सब लोगों को भी उनके लिए वोट करवाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वही काम कर रहे हैं। मोदी सरकार जो है उसमें कोई संतुष्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या कारण है संतुष्ट न होने का? बड़े बड़ी जुमलेबाजी करना अलग बात है, और सरकार चलाने के लिए दम चाहिए। सरकार ऐसे सरकार चल जाती है क्या कि आपने जुमलेबाजी की, हवा हवाई की और नीचे आपका कुछ है ही नहीं, जमीन में आना पड़ता है सरकार चलाने के लिए। मैं दिल से तो जो मेरे को असेसमेंट मेरा जो बोलता, मैं वोट तो मोदी जी को देने वाला हूँ, मीन्स भारतीय जनता पार्टी को। क्यों देने वाले हैं, क्या कारण? जो डेवलपमेंट और जो चाहे साइंस के उसमें कह लो, चाहे देश की एकता के बारे में कह लीजिए, उस हिसाब से मुझे ये पार्टी का कार्यक्रम अच्छा लगा, इसलिए मैं इस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है जो हुई या है, आप क्या फील करते हैं? यदि आप प्रैक्टिकली जबलपुर के बारे में बात करते हो, संसदीय क्षेत्र के बारे में, तो सांसद साहब ने ऐसा कोई बहुत काम हमारे एरिया में नहीं किया है। सिर्फ एक कई सालों से बात चल रही है कि रानी ताल से मेडिकल मदन महल में ओवरबोर्ड लगाएंगे, क्या कहते हैं उसको, फ्लाईओवर बनाएंगे। एक फ्लाईओवर शास्त्री बीच के ऊपर था। थोड़ा बहुत काम जो इन्होंने किया है एयरपोर्ट का किया, पर वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पैसा आके पड़ा हुआ है ओवर उसका, फ्लाईओवर का काम स्टार्ट नहीं किया है। काम तो कोई इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं किया है, पर चूंकि हमें मोदी जी को वोट करना है, इसलिए यहाँ से जो भी XYZ खड़ा होता है वोट बीजेपी को देंगे।
दैट इज माय डिसीजन। अच्छा, 5 वर्ष के कार्यकाल में आप मोदी फेवर की बात कर रहे हैं, कुछ शिकायतें रही हैं, सरकार से नहीं रही हैं? सरकार से शिकायतें तो हैं कुछ, जैसे कि मैं रिटायर्ड हूँ, मेरा केस मैं ईपीएफ पेंशनर हूँ, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं किया कुछ। एक नंबर ये तो माइनस पॉइंट हो गया। दूसरा जो उनका प्लस पॉइंट है, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से जो इन्होंने जो कास्टिज्म को जो खत्म किया है, राष्ट्रवाद का जो इन्होंने नारा दिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उस पर मैं इनको वोट देना चाहता हूँ। Well, this is what the people said. But do opinion polls predict the same? Let us have a look. Times Now VMR poll says that Congress will back 7 seats in the state, while BJP will back 22 seats and others will get no seat. That means the SP-BSP alliance or the regional parties will not get any seat in the state, while BJP will get the maximum seats. The News Nation survey says BJP will get 21 seats out of the 29 and Congress will get only 8 seats. ABPC voter says that BJP will back 27 seats and Congress will get only 2 seats. Well, Madhya Pradesh will go for polling in 4 phases with the first phase starting on April 29th. Whether the BJP will sweep the state again or will the Congress bounce back just like in the assembly election, we will get to know on May 23rd. Till then, keep watching HW News.